Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss another nucleophilic addition reaction of aldehydes and ketones. This is the last nucleophilic addition reaction of aldehydes and ketones, and this is very important. This reaction is fifth and last reaction of nucleophilic addition reaction. This is addition of alcohols to aldehydes and ketones. Addition of alcohols to aldehydes and ketones. Or we can simply say that formation of acetals and ketones. What does that mean? When we add two molecules of alcohols to aldehydes, we result into the formation of acetals. What are acetals? Acetals are basically dialkoxy. Basically, they are dialkoxy compounds. Gem dialkoxy compounds, we can say. They are basically gem dialkoxy compounds. That is, when we add two molecules of alcohols to aldehydes, we get acetals. What are acetals? Acetals are basically gem dialkoxy compounds. Gem dialkoxy compounds means these are those compounds in which two alkoxy means OR. R may be methyl, ethyl, propyl or butyl. Gem dialkoxy. Alkoxy means OR. These are basically those compounds in which two alkoxy OR groups are attached to same carbon atom. Gem means same carbon atom. These are called as gem dialkoxy compounds. Are you getting me? आज का क्वेश्चन हमारा है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. व्हेन we add alcohols to aldehydes, we get compounds which are called as acetals, and when we add alcohols to ketones, we get ketones. What are acetals? These acetals are important class of compounds, which these are basically gem dialkoxy compounds. Gem dialkoxy compounds, we know these are those compounds in which two alkoxy groups. What are alkoxy groups? Alkoxy means OR, where R may be any alkyl group, methyl, ethyl, propyl, butyl या कोई भी हो सकता है. Are you getting me? Coming back to the reaction, alcohols add to molecules of alcohols. These are ROH compounds. These compounds add to molecule of aldehydes. Aldehydes undergo nucleophilic addition reaction in presence of dry HCl. Remember dry HCl. In presence of dry HCl to form compounds which are called as acetals. Remember, acetals are formed by aldehydes, ketones are formed by ketones. Aldehydes undergo nucleophilic addition reaction in presence of dry HCl to form acetals when treated with alcohols. When treated with alcohols, like this. This is aldehyde. It reacts with alcohol in presence of HCl dry to form R. This is called as hemiacetal. इसमें एक ही OR ग्रुप आ गया. This is called as hemiacetal. This hemiacetal यहां पे मैं लिख लेता हूं. This is aldehyde, not ketone. Aldehyde reacts with alcohol in presence of HCl to form
This is hemiester. Hemiester. This hemiester reacts with second molecule. This is the first molecule. This is the second molecule. Reacts with second molecule of ROH, यानी कि alcohol, in presence of dry HCl to form compound. This compound is called as acetal. Acetal means jam dialkoxy compound. दो R ग्रुप एक ही कार्बन के साथ रहेंगे. This is called as hemiester. Aldehyde reacts with two molecules. Two molecules of alcohols in two different steps to form acetal. In first step, aldehyde reacts with alcohol to form hemiester. Hemi means आधा, half acetal. एसिटल में दो अल्कोक्सी ग्रुप होते हैं, हेमीएस्टर में सिर्फ एक ही अल्कोक्सी ग्रुप होता है. Aldehyde first reacts with alcohol to form hemiester. Hemiester reacts with second molecule of alcohol in presence of HCl to form acetal. Acetal means jam dialkoxy compound. Now, this reaction actually takes place in two steps. This reaction actually takes place in two steps, as you can see from the general reaction. In first step, aldehyde reacts with alcohol, one molecule of alcohol, in presence of dry HCl to form hemiester. Then in the second step, this hemiester reacts with second molecule of alcohol, again in presence of dry HCl to form acetal. हेमीएस्टल में एक OR ग्रुप होता है, एसिटल में दो OR ग्रुप होते हैं, as you can see from this reaction. This is aldehyde. This aldehyde reacts with alcohol in presence of HCl to form hemiester. फर्स्ट स्टेप में aldehyde रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल के साथ अल्कोहल के और हेमीएस्टर बनाता है. हेमीएस्टर में सिर्फ एक OR ग्रुप होता है. पहले स्टेप में यही होता है, aldehyde रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ और आपका हेमीएस्टर बनाता है. दूसरे स्टेप में जो ये हेमीएस्टर मिला, ये हेमीएस्टर सेकंड मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl आपका एस्टर बनाता है. अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे ये वाले रिएक्शन का, दिस रिएक्शन, अगर आप ये वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो जाती है. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एक्चुअली इन 3 स्टेप्स. अगर आप मैकेनिज्म को देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स. पहले स्टेप में क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटोनेशन ऑफ aldehyde. दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है. तीसरे स्टेप में डिप्रोटोनेशन हो जाता है. From mechanism point of view, formation of acetal takes place in 3 steps. In first step there occurs protonation, in second step there occurs nucleophilic addition, in third step there occurs deprotonation. अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे क्लियर आपको पता चल जाएगा ये रिएक्शन होती कैसे है. पहले स्टेप में क्या हो जाता है, दिस इज aldehyde, दिस इज aldehyde. मैंने पहले ही बोला एस्टल aldehyde बनाते हैं, aldehyde से एस्टल बन जाता है. क्या हो जाता है, ड्राई HCl से H पॉजिटिव आ जाता है. ये कहां से आ जाता है, ये ड्राई HCl से आ जाता है. ड्राई HCl से H पॉजिटिव आ जाता है. ये H पॉजिटिव क्या करता है, ये लोन पेयर जो ऑक्सीजन पे होती है इसी पे अटैक करता है. तो क्या होता है, आपका ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा. यहां से H, इस पे पॉजिटिव आ जाता है, ये इधर चला जाएगा. दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड aldehyde. यहां पे पॉजिटिव आ गया, दिस इज H. दिस इज प्रोटोनेशन. पहले स्टेप में क्या हो जाता है, हमारा aldehyde ड्राई HCl से एक प्रोटॉन ले लेता है और प्रोटोनेटेड aldehyde बन जाता है. फिर दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है, जो ये प्रोटोनेटेड aldehyde बन गया, दिस इज प्रोटोनेटेड aldehyde. इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है,
तो यहां से क्या हो जाता है, यहां से हमारा अल्कोहल, अब फर्स्ट मॉलिक्यूल अल्कोहल का आ जाता है, इस पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, एज वी ऑल नो दैट अल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, ये अपनी ये लोन पेयर डोनेट करता है कार्बन को। ठीक, जब ये कार्बन को लोन पेयर डोनेट करेगा तो आपका कंपाउंड जो है वो ऐसे बन जाएगा, यहां से आ जाएगा O और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपका हेमीएस्टर बन जाएगा। दिस इज हेमीएस्टर। देख लीजिए, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हो गई, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एडिफिलिक एडिशन हो गया, तीसरे स्टेप में प्रोटॉन एक यहां से -H पॉजिटिव प्रोटॉन एक बाहर आ गया। Hence this reaction takes place in 3 steps. Now in the second step, पहले स्टेप में एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का ऐड हो गया और हमारा हेमीएस्टर बन गया। दूसरे स्टेप में वही फिर से ये तीनों चीजें रिपीट हो जाएगी और हेमीएस्टर कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर में। आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, यहां तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से देख लीजिए, हमारा ये अल्डिहाइड जो होता है, अल्डिहाइड को अगर आपने एस्टर में कन्वर्ट करना है तो ये पहले 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में हेमी एस्टर बन जाएगा, दूसरे स्टेप में एस्टर बन जाएगा। दैट मीन्स हमारा अल्डिहाइड जो होता है, फिर से मैं बताता हूं, अल्डिहाइड पहले हेमी एस्टर बन जाता है, फिर हेमी एस्टर कन्वर्ट हो जाता है एस्टर में। पहले स्टेप में फर्स्ट मॉलिक्यूल अल्कोहल का ऐड हो जाता है, सेकंड स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। लेकिन कन्वर्शन ऑफ अल्डिहाइड टू हेमीएस्टर एक्चुअली टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तीसरे स्टेप में डिप्रोटोनेशन। यहां पे देख लीजिए, दिस इज अल्डिहाइड, पहले स्टेप में इसने प्रोटॉन ले लिया ड्राई HCl से और ये वाला चीज बना दिया, प्रोटोनेटेड अल्डिहाइड बना दिया। दूसरे स्टेप में अल्कोहल आ गया, पहला मॉलिक्यूल अल्कोहल का आ गया, वो यहां पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है और ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ये इंटरमीडिएट जो बनता है, ये एक प्रोटॉन को लूज करता है यहां से OH, ये एक प्रोटॉन को लूज करके आपका हेमीएस्टर बन जाता है। अब यही 3 स्टेप हेमीएस्टर को कन्वर्ट करेंगे एस्टर में। यही 3 स्टेप फिर से रिपीट हो जाएंगे और सेकंड मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, ये मैकेनिज्म रहा अल्डिहाइड को कन्वर्ट करने का हेमीएस्टर का। दूसरा स्टेप रहेगा, हेमीएस्टर को कन्वर्ट करेंगे एसिटल में। दिस रिएक्शन अगेन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। ये वाला रिएक्शन भी 3 स्टेप में हो जाएगा। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाएगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तीसरे स्टेप में डिप्रोटोनेशन हो जाएगा और आपका एस्टर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा फिर से देख लीजिए, पहले हम अल्डिहाइड लेंगे, हम हेमीएस्टर लेंगे, दिस इज हेमीएस्टर। हेमीएस्टर पहले प्रोटॉन लेगा, कहां से लेगा, ड्राई HCl से लेगा, ड्राई HCl हमारा प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन यहां जाके यहां पे अटैक करेगा और प्रोटोनेटेड हेमीएस्टर बन जाएगा। दिस इज प्रोटोनेटेड हेमीएस्टर। ये क्या करेगा, ये प्रोटोनेटेड हेमीएस्टर क्या करेगा, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट की, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इस पे चला जाएगा, हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन और वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, देख लीजिए, दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, अब सेकंड मॉलिक्यूल अल्कोहल का आ जाएगा, सेकंड मॉलिक्यूल आ गया अल्कोहल का, दिस इज अल्कोहल, लेकिन सेकंड मॉलिक्यूल आ जाएगा, ये सेकंड मॉलिक्यूल आ जाएगा, बीइंग न्यूक्लियोफाइल, ये जाके यहां पे अटैक करेगा, अपनी लोन पेयर ये यहां पे देगा,
तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये OR ऐसे ही रहेगा, ये सेकंड ORH आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब यही क्या करेगा, ये यहां से ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज रह गया, ऑक्सीजन ने जब लोन पेयर कार्बन को दे दी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये प्रोटॉन को वापस छोड़ देगा -H पॉजिटिव, ये डिप्रोटोनेशन हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो एस्टर बन जाएगा। देख लीजिए OR, दिस इज एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक, तो अगर आप देखेंगे हमारा ये अल्डेहाइड जो होता है, अगर आपने अल्डेहाइड को अगर आपने अल्डेहाइड को एस्टर में कन्वर्ट करना है तो ये 2 स्टेप में हो जाता है। पहले अल्डेहाइड हेमी एस्टर में जाता है, उसके बाद हेमी एस्टर एस्टर में जाता है। लेकिन कन्वर्शन ऑफ अल्डेहाइड टू हेमी एस्टर रिक्वायर्स 3 स्टेप्स: प्रोटोनेशन, एडिशन एंड डिप्रोटोनेशन। Similarly, conversion of hemiacetal to ester also requires 3 steps: protonation, nucleophilic addition and deprotonation. नोट डाउन कर लीजिए, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी, इसकी एग्जांपल एक लेंगे। अगर आप एस्टर फॉर्मेशन की एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल एक ले लीजिए इसकी। अल्डेहाइड शो करता है, दिस इज एसिटाल्डेहाइड। दिस एसिटाल्डेहाइड विल रिएक्ट विद अल्कोहल पहले मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl ड्राई, तो आपका हेमी एस्टर बन जाएगा। अगर यहां पे भी हम एग्जांपल ले ले C2H5OH, तो यहां पे आ जाएगा OC2H5, यहां से आ जाएगा OH। दिस इज हेमी एस्टर। ये हेमी एस्टर क्या करेगा, ये फिर से रिएक्ट करेगा, यहां पे लिखेंगे दिस हेमी एस्टर will react with C2H5 second molecule in presence of HCl, फिर से ड्राई HCl लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका एसिटल बन जाएगा। दिस इज एसिटल। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। कन्वर्शन ऑफ एसिटाल्डेहाइड टू एसिटल रिक्वायर्स 2 स्टेप्स। पहले एक मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है अल्कोहल का, फिर सेकंड मॉलिक्यूल। दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक साथ ऐड नहीं होते, बारी बारी से हो जाते हैं। पहले स्टेप में एक मॉलिक्यूल तो हेमी एस्टर, दूसरे स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल तो एस्टर। सो कन्वर्शन ऑफ अल्डेहाइड टू एस्टर रिक्वायर्स 2 स्टेप्स। फर्स्ट अल्डेहाइड कन्वर्ट हो जाता है हेमी एस्टर में, फिर हेमी एस्टर चला जाता है एस्टर में, याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब रही बात फॉर्मेशन ऑफ कीटल्स की, वो भी आप देख लीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। देख लीजिए, हो गया। अब रही बात कीटल्स की। कीटल्स जो होते हैं ये कीटोन्स बनाते हैं, लेकिन याद रख लीजिए कीटोन्स डज नॉट रिएक्ट विद, रिमेंबर ये चीज याद रख लीजिए, कीटोन्स डज नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करते। रिमेंबर, कीटोन्स डज नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जस्ट लाइक अल्डेहाइड्स। ये अल्डेहाइड की तरह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। However, they do react with ethylene glycol. Ethylene glycol
to form cyclic ketal. कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे. इथिलीन ग्लाइकॉल. इथिलीन ग्लाइकॉल होता क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल ये होता है, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल. इसी के साथ ये रिएक्ट करेंगे, इसी के साथ ये रिएक्ट करेंगे. रिमेंबर अल्डेहाइड जो होता है, अभी आपने देखा अल्डेहाइड मोनोहाइड्रिक, यानी कि जिसमें OH ग्रुप एक ही होता है. अल्डेहाइड रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल टू फॉर्म हेमीएस्टर, देन हेमीएस्टर रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सेकंड मॉलिक्यूल टू फॉर्म एस्टर. हाउएवर दिस ketone does not react directly with monohydric alcohol. In fact, it reacts with dihydric alcohol like ethylene glycol to form cyclic ketal. cyclic ketal कैसे बनाएगा हम अभी देखेंगे, यहां पे मैं बता दूंगा. दिस इज कीटोन. ये क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ. This is ethylene glycol. Ketone react with ethylene glycol in presence of HCl to form cyclic compound like this. This is called as this cyclic compound. This is cyclic compound. This is called as ketal. However, remember this ketal is formed only in presence of ethylene glycol, not with monohydric alcohol. शॉर्ट में अगर आपने याद रखना है तो शॉर्ट में आप यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे ऐसे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर आ जाएगा और आपका कीटल बन जाएगा. नोट डाउन कर लीजिए. ठीक, फिर से देख लीजिए. कीटोन्स रिएक्ट विद इथिलीन ग्लाइकॉल नॉट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl ड्राई टू फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड कीटल. दिस इज साइक्लिक कंपाउंड. रिमेंबर दिस इज साइक्लिक कंपाउंड. हाउएवर एस्टर इज नॉट साइक्लिक कंपाउंड. ये हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो गए. अब इसके बाद हमारा अल्डेहाइड और कीटोन का जो क्वेश्चन रहेगा, दैट मीन्स कंडेंसेशन रिएक्शंस. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे. इसको नोट डाउन कर लीजिए.